be loyal to yourself. अगर नहीं तो entrepreneurship में नहीं आता. Don't fall in the prey of someone that this is lucrative, that is lucrative. Good afternoon. Thankful to Dr. Mansoor Saab, the coordinator of the program, and I welcome all the delegates from the faculty of fisheries and the farmers community for this wonderful occasion for the scientific management of rainbow trout fisheries. Before I will start my presentation, I would like to introduce myself. I am Dr. Iqbal. I have done PhD in biotechnology. I am by professional a farmer also, and I have recently joined in Khyber K2 Aquaculture Group as production leader. Please, next slide. Before I will start, I would like to know how many fish farmers are in this room. Fish farmers. They are aspiring farmers, not Aspiring farmers. Okay. There is a misnomer term, fish farmer. When we start an aquaculture venture, farming for a young and dynamic person is, we can call as it, entrepreneurship. And entrepreneurship, when we broadly classify it, it comes under startup, a kind of startup it is. Everybody wants to know the startup, and when somebody enter into the entrepreneurship model, he start farming or any other thing in the real estate or in the hospitality, either in the infrastructure development. Every business didn't flourish. हर बिजनेस कामयाब नहीं हो जाता, लोग फ्लॉप हो जाते हैं. Like Flipkart and Amazon are two similar type of companies. One flourish and other is going to bankrupt. Okay, so the reason to understand an entrepreneurship model is the basic fundamental for involving your manpower and energy. Is it okay? Otherwise, what is shown on the slide, if you do not build your dream, someone will hire you and he will make his own dreams come true. Okay? The next slide. See the total global contribution, total global setup of our planet Earth. 70% is land, water, and 30% is water. 30% is land. See, only 2% of food, 2% of food we are getting from water. Though its contribution is 70%, but globally it is contributing only 2% in the food commodity. See, if we can utilize the 30% of land to feed the globe, what will be the potential if we potentially utilize the 70% of our resources? That's water. Therefore, it is really a game changer and a thought-provoking vision that one should concentrate on this simple figure. We have been taught since our childhood that 70% water, 30% land. But never we thought about what will be the contribution if we are able to feed the globe by using judiciously only 30% of land, and if we will be able to utilize our 30% or 50% of water resources, where will be the global economy? Please, next slide. There was a person in Europe, his name is Peter. He was basically a mechanical engineer. He was running a company. In that company, the company was getting in losses. He developed a model. He thought that why I am losing my job,
why I am losing my hard-earned money. What is the basic reason of that? He built a model to evaluate the loopholes in his company. He found that there is mismanagement of human resource. The persons I am going to hire, they are meant for something else and they are doing unorganized work. And then he rectified that and developed a model that is globally known as Peter model. And this was done when the Industrial Revolution was at its infancy. Then based on that, he developed observations and experimentation and analysis. These are the three principal components of Peter's principle. And globally, the economic formers have been taught that if you need to globalize your economy, then these points should be kept under consideration. Please, next slide. See, what we need for a progressive and good aquaculture practice in reference to rainbow trout. The first component that comes in our mind is the land, then there is water, then there is designing of raceways. You are the fishery students, you are well known about this, so I do not need to take much time on this slide. Please, next. Land. What I say, being as a farmer, what madam has spoken already, that fisheries is a lucrative sector. But believe me, fisheries is not lucrative sector for everyone. You may be astonished what I am saying. Fisheries is no more lucrative for everybody. The reason for this, should I speak in bilingual? हम जब कोई काम करते हैं ना, हम सोचते हैं उसने किया वो फायदा कमा रहा है, I will also jump into this. When he is earning, what about me? I will also earn. लेकिन मैंने भी किया. मैं भी जब फील्ड में जाता था, किसानों से पूछता था कितना कमाती हो? बोलते इतना कमाता हूँ. मैंने बोला यार मैं नौकरी करता हूँ वहाँ पे, फैकल्टी फिशरीज में रिसर्चर हूँ, प्रोजेक्ट्स लाता हूँ. यार इससे बेटर तो किसान कमा रहा है. I should jump into it. तो जमीन ढूंढने निकला. जमीन ढूंढे तो वो एक चैलेंज होता है जमीन का. दैट्स वाई लैंड इज द फर्स्ट प्रेफरेंस. आप लैंड की सिलेक्शन कैसे करेंगे? इफ यू आर गोइंग टू बी एन एंटरप्रेन्योर, योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द कैपिटल इन्वेस्टमेंट. क्या आप कैपिटल इन्वेस्ट, हम क्या कहते हैं कि मैंने फलांजे जमीन सच इंटीरियर दैट्स इंटीरियर सच बना सस्त आप कहते हैं मैं क्या गार्डन आप सच सस्त जमीन बना. ये सस्ता आदमी को ले डूबता है क्योंकि उस सस्ते में एक्सेसिबिलिटी नहीं होती है, उस सस्ते में सर्वाइबिलिटी नहीं होती है. क्योंकि कस्टमर जब फार्म पे आता है कहाँ शख्स दुकानस पर चीवन बार्गेनिंग पावर से इंक्रीज गसन दुकानदारस यह चीज आटोस मज भर पे मल पत मल 10 रुपये कॉकट 2 रुपये हो 10 रुपये ये वो जो बार्गेनिंग पावर होती है ना वो खत्म हो जाती है. तो जो जमीन की डिमार्केशन है, जो हमें जमीन चाहिए, उस पर हमें दो कंसेप्ट है. एक है कि हमें वाटर रिसोर्स जो चाहिए, अगर वो इंटीरियर में है तो वो लीस्ट प्रेफर्ड लैंड है एक एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने के लिए. अगर वो रोड साइड में है तो रोड भी देखनी है कि ये जो रोड है इस पर फुटफॉल कितना है, इसमें एक दिन में गाड़ियां कितनी चलती है, जो गाड़ियां चलाने वाले हैं उनका स्टेटस क्या है. Is they really going to buy 500 kg trout? उनमें से अगर 1000 गाड़ियां चलती है तो 1000 गाड़ियों में से कितने गाड़ी वाले ऐसे होंगे जो ब्रेक देके उतरेंगे और कहेंगे मुझे मछली का 1 kg दे दीजिए. तो लैंड सिलेक्शन, क्योंकि आप एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल बना रहे हैं, आप जब फिशरीज ग्रेजुएट बाहर निकले काम करने के लिए ऑन फील्ड, उसका काम करने का तरीका और जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश किया है वो अगर फिशरीज नहीं पढ़ा है तो ये दूर से दिखना चाहिए कि हाँ ये फिशरीज ग्रेजुएट का है, इससे फिशरीज पढ़ा है और उसके बाद मार्केट में आया है. अदरवाइज आप लॉस में चले जाओगे. ठीक, नेक्स्ट स्लाइड. देन वाटर. वाटर इज द लाइफ लाइन.
वाटर में हमें क्या चीज देखनी है? आप सब जानते हैं कि पीएच होना चाहिए, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होना चाहिए, इसीलिए मैंने वो चीजें इसमें रखी है जो आप लोग देखते हैं, जो आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन जो आप लोगों को पता नहीं है, मैं वो चीजें आपको बताने की कोशिश करूंगा। क्योंकि किताबों में वो चीजें होती है जो स्टैंडर्डाइज होती है, जो एस्टैब्लिश्ड होती है, लेकिन जो रियल फील्ड में हमें चैलेंजेस आते हैं वो किताबों में नहीं लिखे होते हैं। क्योंकि किताबों में जो पब्लिकेशन हम जिसे कहते हैं, अगर आप पब्लिकेशन में इसको डालेंगे तो वो कहेगा इसका स्कोप ही नहीं है, स्टैंडर्डाइज ये ट्राउट में इतना पानी चाहिए, इतना पानी चाहिए। अगर मैं एक स्टूडेंट को बोलूंगा कि आपके 2 रेसवे है, कितना पानी चाहिए आपको पर मिनट, मुझे नहीं लगता है कि किसी स्टूडेंट को पता होगा कि 1 मिनट में एक ट्राउट को कितने लीटर पानी की जरूरत है, उस पानी का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। अगर आपका 60/40 60/7 into 4 अगर आपका रेसवे है, इसमें कितना पानी आ जाएगा। आई फ्रैंकली स्पीक, मैं यहाँ पे पढ़ा हूँ, मैं यहाँ पे रहा हूँ, किसी स्टूडेंट को पता नहीं होगा कि 60/4 में और 7 में इस रेसवे में कितना अमाउंट ऑफ वाटर है। और अगर 2 इंच की पाइप है तो 2 इंच की पाइप से पर मिनट कितना वाटर निकल रहा है। तो मुझे जो लैंड सिलेक्शन करनी है वो किस बुनियाद पे मुझे करनी है। मैं वाटर सोर्स देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं कहीं चश्मा फूट रहा है, इसमें थोड़ा पानी आ रहा है, ओ बढ़िया है, चश्मा है, विंटर की प्रॉब्लम भी खत्म। लेकिन मैं ये नहीं सोच रहा हूं कि कल विंटर जब आ जाएगा तो मेरी मछलियां बड़ी होंगी, मुझे कितना पानी चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं, वो आप में से अगर किसी को अल्लाह बचाए आपको नौकरी ही मिले, ठीक, अगर ना मिली तो लिवलीहुड के लिए कुछ ना कुछ करना है, तो उस प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, मैं प्रोग्राम के प्रोस्पेक्टिव से नहीं बता रहा हूं। What life gives us challenges. हर किसी को वो नहीं मिलता जिसके लिए वो पढ़ाई की है, isn't it? मैं हूँ PhD बायोटेक्नोलॉजी, कितना क्रेज था जब सुनते थे PhD। जब MSc की थी मैं मोहल्ले में किसी से बात नहीं करता था, फिर MSc बायोटेक्नोलॉजी, पता नहीं क्या तो बनूंगा, ठीक, फिर PhD, फिर you will be astonished किस कास्ट में I was the only 3rd person who get young scientist from DST to the tune of 42.75 lakh rupees for RAS project, RAS hatchery for Ladakh। and मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, अभी भी मतलब मेरे मोबाइल में है, 9th को मुझे प्रेजेंटेशन है पुणे में, गवर्नमेंट इज विलिंग टू पे मी, गिव मी 1.75 crore rupees for project in fisheries related। I am not going to take that। I am not going to attend the Pune conference because what last? आखिर मुझे क्या चाहिए? 30 साल, 35 साल, 40 साल की जिंदगी एनर्जेटिक होती है, देन फैमिली। आप 40 साल तक नौकरी 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 नौकरी, प्रोजेक्ट, ये सब चीजें, फाइनली वेयर वी लैंड इन डिप्रेशन। टू बी फ्रैंक, इन डिप्रेशन। और फिर आप कहोगे यार कोई 10,000 रुपये भी देना कहीं पे काम, आई विल ब्लंडली ज्वाइन, क्योंकि आप मेरे में उतनी बॉडी की जो एनर्जी है ना, वो दिमाग, वो घर वालों का साथ, वो सारा दैट ऑल गेट्स डिसअसेंबल्ड। और आपको ऐसा लगेगा कि यार लाइफ तो अब पता नहीं क्या बन गई है, हेल बन गई। तो ये स्टेज जो है, मैं आपको वो चीजें कह रहा हूं कि जो लाइफ आपको चैलेंज करती है, लाइफ चैलेंज करती है। आज जिस बंदे ने कल देखा होगा अच्छे से कि हम 40 बच्चे फिशरीज में एडमिशन हो रहा है, MSc PhD में इतने बच्चे आ रहे हैं, हर कोई जॉब की तलाश में है, कोई कुछ कर नहीं रहा है, पिछले 10 साल से पोस्टें नहीं आ रही हैं, तो स्टिल ही विल ड्रीम दैट वन डे आई विल गेट गवर्नमेंट जॉब। आई थिंक फॉर मी द बिगेस्ट फूल इन द वर्ल्ड इज दैट पर्सन, क्योंकि उसको पता है यार आगे कुछ नहीं है, 3 पोस्ट्स आर देयर, और आप 100-200 बच्चे हो, बेरोजगार हो, स्टिल ड्रीमिंग दैट आई विल गेट जॉब, डेट ऑफ, आज SSB ने पोस्टें निकाली, चलो दौड़ते हैं फार्म भरने की, फॉरगेट दिस। अगर और ये भी बिजनेस में वो आ जाए, क्योंकि मैं एक फेलियर बिजनेस, मैं तभी कह रहा हूं ना, जो चीज फेस की है ना, इट इज बेटर टू डिलीवर दैट, कि लोग उसमें ना फंसे। मैडम जैसे कह रही थी, वो आपको मतलब हो ना, परी महल हाउ यथमसी होते हैं। गवर्नमेंट इज नॉट इवन लुकिंग फॉर trout fish farmers, they are having their produce ready, उनका प्रोड्यूस तैयार होता है। गवर्नमेंट फ्रॉम लास्ट
30 years government has not established a market channel. Is it not a joke? गवर्नमेंट एस्टैब्लिश ही नहीं कर पाई, क्या अक्सर करेंगे? फार्म देना बड़ी बात नहीं है, हमारा क्या, हमें पैसे खाने से मतलब होता है। 60% सब्सिडी, लेट इट बी, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि 40% तो मेरे जेब से भी निकला ना, फिर जो मैन पावर, फिर वो 40% भी जाया। जमीन जो एक्वायर करेंगे, हर किसी के पास जमीन नहीं होती है, आजकल जमीन के लिए आसमान छू गई। तो इसलिए बिफोर जंपिंग इनटू दिस, आपको सारी चीजें कैलकुलेटेड लेके चलनी है, तब जाके आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन जाओ। मैं खैबर में रहा हूँ, मतलब बड़े से दिन नहीं हुए, महीना 1.5 महीना हो गया, लेकिन रियली मैं जो वहां से एक्सपीरियंसेस 1.5 महीने में लेके आया हूँ, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि बिजनेस करते कैसे हैं। सब्सिडी 60-40 ये बिजनेस नहीं है, ये खाली पैसे का खेल है, बिजनेस नहीं है। बिजनेस कैसे करते हैं, किस चीज, किन किन चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरह से रिक्रूट करते हैं बंदे को, किस तरह से एजेंसी को रिक्रूट करते हैं, किस तरह से मार्केट को देखते हैं, और फिर किस तरह से बिजनेस एस्टैब्लिश करते हैं। हम कहते हैं आज फर्म ले लेंगे, कल ये तैयार होना चाहिए, परसों में मार्केट में होना चाहिए। ऐसे नहीं होगा। अगर ऐसा करना है, यानी कि 3 रेस में 4 रेस में कैलकुलेशन करके बैठोगे, फिर फाइनली मेरी तरह लाल चौक में पीएचडी करने के बाद मछलियां बेचती दिखोगी, फिर सामने विल हियर यू, फिर कोई देखेगा ना आपको, यू विल फील गिल्टी। बिफोर पुशिंग योरसेल्फ इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, इट्स माय रिक्वेस्ट, बी लॉयल टू योरसेल्फ। Am I really able to deliver? अगर नहीं तो एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं आता। Don't fall in the prey of someone that this is lucrative, that is lucrative. Nothing is lucrative until you make that lucrative. Okay? Next slide. फिर आपका डिजाइनिंग ऑफ रेस। अब आपको जमीन मिली, आप इस जमीन पे कैसे बनाओगे रेस? वो जमीन कहीं चकोर होगी, कहीं त्रिकोण वाली शक्ल में होगी, लेंथ उसकी क्या होगी, उसकी ब्रेडथ कितनी होनी चाहिए। मेरे पास जमीन का एक हिस्सा है, इसमें लेंथ, इसमें कितने रेसवे आ सकते हैं, मैं इसको जुडिशियस यूज कैसे कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे रेसवे में 60 के बदले अगर 60 स्टैंडर्ड है, क्यों स्टैंडर्ड है 60? अगर 70 स्टैंडर्ड है, क्यों स्टैंडर्ड है 70? अब अगर मेरे पास जमीन है, उसमें 40 फीट की लेंथ है, मैं क्या करूँ, मैं उसको किस तरह से जुडिशियस यूज करूँ। वहां आपने जो नॉलेज हासिल की है, वो मुझे नहीं लगा, मैंने आज तक नहीं देखा कहीं रिसर्च पेपर में, किसी किताब में लिखा हुआ, शायद मैंने किताबें बहुत कम पढ़ी होंगी, कि जहां पे ये लिखा होगा कि 60 क्यों है रेसवे, और किसी बच्चे ने ये पूछा होगा आज तक क्लास में कि सर ये 60 क्यों रेसवे है, ये 7 फीट क्यों रेसवे है, ये 3 फीट वाटर डेप्थ क्यों रखते हैं, अगर हम इसको 2 फीट वाटर डेप्थ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर 3 फीट वाटर डेप्थ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 इंच वाली पाइप क्यों रखते हैं, ये 2 इंच वाली क्यों नहीं रखते। आज तक मैंने नहीं सुना किसी कॉन्फ्रेंस में किसी को ये सवाल पूछते हुए। ठीक, तो जो रेसवे है, सर्कुलर रेसवे क्यों बनाती है रास, इसका क्या तरीका, ये इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि हम आउटडोर रेसवे लेंथ वाइज बनाते हैं और रास में सर्कुलर में चले जाते हैं, रीजन क्या है, फिश कैसी है, इसका बिहेवियर क्या है, वो सारी चीजें जब अंडरस्टैंड करेंगे आप ट्राउट को, वो फील करेंगे, तब जाके आप एक पर्टिकुलर रेसवे का डिजाइन तैयार करोगे। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फिश सिलेक्शन, व्हाई ट्राउट, ट्राउट ही क्यों, और ट्राउट में अगर मैं फिश को सिलेक्ट कर रहा हूं, ट्राउट को इंडिया में आए हुए कितने साल हो गए, कितने साल हो गए, तो करीब करीब मतलब मुझे लगता है 100 साल होने लगे, है ना, 100 साल होने लगे। 100 साल में हमारे पास स्टॉक क्या है, हमारी मछली 250 ग्राम 1.5 साल में होती है, कितने साल, 1.5 साल में आपका जो लैंड रिसोर्स है वो यूटिलाइज रहता है। और यूरोप, डेनमार्क, यूएसए, नॉर्वे, ईरान, तेहरान, इन जगह में पता है ट्राउट कितने दिन में तैयार होती है, कितने दिन में होती होगी,
एनी आइडिया? हाँ, 5 मंथ्स। और साइज क्या मिलता है 5 मंथ्स में? 1 kg। पर रीजन क्यों? उन्होंने, हमने भी स्ट्रेन लाई हुई से, नॉर्वे, डेनमार्क से, लेकिन हमने आज तक इसके बारे में सोचा नहीं, हमारे पॉलिसी मेकर्स ने सोचा नहीं कि 100 साल हो गए इस मछली को यहाँ पे, इसमें ग्लोबली कितनी डेवलपमेंट हुई है, एक टेक्नोलॉजी यहाँ लाई, उसको डेवलप करें। मे बी सम ऑफ यू, इंशाल्लाह आई होप कि कुछ बच्चों को अल्लाह ताला ऐसी अक्ल अता करे कि मतलब वो काम कर दे जो लास्ट 100 ईयर्स में नहीं हुआ। ठीक, हम जो ट्राउट एग, एक एग अभी हम जो परचेज कर रहे हैं, डू यू नो द प्राइस ऑफ 1 ट्राउट एग? 7 रुपीज। कितना? एंड कंपनी इज गिविंग ऑल फीमेल्स, नॉट मेल, ऑल फीमेल्स, मीन्स द कॉपीराइट दे केप्ट विद देम, ताकि आप ब्रीड ना कर पाओ उस मछली को। फिर यहाँ ब्रीड करोगे तो जो आपकी प्रोजेनी बनेगी, यानी कि आप अगर वहां से फीमेल लाया, यहाँ से मेल उसको किया, उसके जो रिजल्ट्स देखे गए ना, वो डिलीटरियस रिजल्ट्स, दैट इज टेकिंग 4 times द फीड। सी व्हेयर वी आर लैंडिंग, वी नीड टू राइज अप, वी नीड टू स्पीक। मैं यहां आया हूं कि आप अब अगर मछली पालन में एंटरप्रेन्योरशिप, आप मॉडल तैयार कर रहे हो, तो आपको किस तरह से करना है। मैं जो स्टॉक कर रहा हूं मछली, उसका साइज क्या होना चाहिए, उसकी स्ट्रेन क्या होनी चाहिए, वो कहां से आने वाला होगा, मुझे बेटर रहेगा यहाँ का लोकल कि मुझे बेटर रहेगा कि मैं फॉरेन से मंगवाऊं। अगर फॉरेन से लाना है तो क्या प्रोसीजर्स है, वो सारे फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट फीड। फीड देख लीजिए, मैडम क्या कह रही थी अभी, वो चली गई। हाँ, फीड ट्राउट में आपको पता है स्टेट फिशरीज फीड का क्या है एफसीआर? 2.5 2.5 इज द एफसीआर। ग्रोवल का पता है, ग्रोवल का क्या है? 1.1. They claim on, I testify that 1.2 under normal circumstances. एबिस का, एबिस ग्रुप ऑफ कंपनी का, उसका भी टचिंग 1, ये 1.3 1.4। ठीक, अब इनका ये एफसीआर है, और यूरोप में एफसीआर क्या होगा? 0.0. और कॉस्ट आपको पता है क्या है? इंडियन 10,000 रुपीज। जो यूरोप वाले फीड इस्तेमाल करते हैं उसका कॉस्ट है, अगर हम उसको ब्रेकअप करें, इंडियन करेंसी में कन्वर्जन करें, तो वो 10,000 रुपया हिंदुस्तान का बनता है, और एफसीआर है 0.5। मतलब ये चीजें जो है ना, मेरे कहने का मतलब है वी नीड टू ग्रो, वी नीड टू कम आउट फ्रॉम ना गेटिंग डिग्री एंड देन कोई आ जाएगा भाई। आज आपको पता है लाल चौक में अगर शॉप छोड़ोगे ना मछली की, दुनिया भर का काम है। ऐसा कंपोनेंट है जहां सबसे ज्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट जाती है। आपका ऑपरेशनल खर्चे का 98% खाली फीड है, 2% आपका जो बाकी मटीरियल है। नेक्स्ट, मार्केटिंग। मार्केटिंग यानी कि सब चीजें करने से पहले, जितनी चीजें मैंने बोली आपको, वो सब चीजें करने से पहले मार्केट को स्टडी करना। हम कह रहे हैं ना ट्राउट का दुनिया भर का मार्केट है, रियली है। ट्राउट एक्सेसिबिलिटी नहीं है, ट्राउट का मार्केट है रियली, मैं इसके साथ 100% एग्री करता हूं। लेकिन जहां मार्केट है वहां तक एक्सेसिबिलिटी, हम कश्मीर के हैं, लाल चौक में अगर हमें कोई मरी हुई ट्राउट दे देगा हम ले लेंगे। अब एक फार्मर, इमेजिन कीजिए यू आर फार्मर, आप अनंतनाग से ट्राउट ला रहे हो गाड़ी में, और आपको 5 kg मर गई गाड़ी में ट्रांसपोर्टेशन के दौरान। ठीक, वो लॉस, इसको कैलकुलेट करना है एक बार बैठ के ना। जब आदमी बिजनेस करता है ना, वो कैलकुलेशन करता है, एक एक रुपया खर्च करने से पहले वो उसको क्या करता है, कैलकुलेट। मैंने जो गाड़ी हायर की उसका कॉस्ट, ठीक, फिर यहां पहुंचे, यहां मोटिलिटी हो गई 5 kg 10 kg 1.5 क्विंटल में। अच्छा 1.5 क्विंटल में 10 kg नुकसान हो गया, गाड़ी का खर्चा आ गया,
अच्छा, अब शाम तक मैं बैठा रहा लाल चौक में, जैसे मैं रहा जब वो था फिश मेला, ठीक। फिर शाम को मुझे अगर इनायत सर तब नहीं बोलते कि आजा यहाँ पर डाल दो, मैं तो पूरा डूब गया होता। फिर यहाँ डाला ऊपर उनके रेसवे में, शाम को अगर आपके 10 केजी 20 केजी बच गए, उसका क्या करें? तो यानी कि जो मार्केट है, ब्लाइंडली नहीं कि गाड़ी लेके हम लाल चौक पहुंच गए तो मार्केट है यार लोग खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। तो आपको जो मार्केट है, कुछ भी करने से पहले आपको मार्केट को एक अच्छे अंदाज से पढ़ना है कि मेरा जो ये प्रोडक्ट है, मैं ट्राउट लेके जा रहा हूं, कितनी कंजप्शन है वहां, कितनी मार्केटिंग अप्रोच है, कितने लोग इसको खरीदेंगे, कितने खरीदते हैं, किस एरिया में खरीदेंगे, अगर बच गया किस तरह से मैं इसको बचाऊं अपने लॉस को, ताकि मुझे गाड़ी फिर से फार्म पे ना ले जानी पड़े। वो सारी मार्केटिंग एनालिसिस, कितने लोग अभी बेच रहे हैं मार्केट में, लाल चौक में कितने आ रहे हैं, सोनवार में कितने आ रहे हैं, ठीक, अनंतनाग के मेन मार्केट में कितने आ रहे हैं, कितने लोग पर डे ट्राउट की चाहत रखते हैं कि हमें मिले। वो मार्केटिंग सर्वे करने के बाद जब वो मैप हो जाएगी, जब वो आपके पास वो सारी चीजें आ जाएंगी, तब जाके आप एक बेस्ट एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। अदरवाइज प्रोड्यूस करना इजी है, जैसे सेब की लास्ट ईयर प्रोडक्शन थी, बम्पर प्रोडक्शन थी, लेकिन फार्मर को मिला क्या? फार्मर को कुछ नहीं मिला, क्योंकि वो जो मार्केट था, पूरा मार्केट में जब आ गया तो पूरा मार्केट 200 रुपये जयपुर दिल्ली मार्केट में था एप्पल की रेट पर बॉक्स, तो यानी कि मार्केट पूरा डूब गया था। तो इसी तरह से ट्राउट का हाल होने वाला है अगर मार्केट एक अच्छी नहीं बनाएंगे, क्योंकि दे आर एज्यूमिंग दैट 200 न्यू ट्राउट रेसवेज आर कमिंग। कश्मीर में अभी प्रोडक्शन कितनी है? 2000 मीट्रिक टन, ठीक, 2000 मीट्रिक टन। अब आप समझ लीजिए खाइबर अलोन और कंपनी अलोन इज गोइंग टू प्रोड्यूस 3000 मीट्रिक टन एनुअली। 3000 metric ton. I am not demoralizing that you should not come. I am saying आप आ जाइए, we are there, the company is there, now it is going to streamline how business is really happening. वो मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि आपको मार्केट पर नजर होनी चाहिए कि मैं मार्केट में ले जाऊंगा, कल 200 ग्राम की मछली चलती थी, आज कितने ग्राम की मछली मार्केट में रेट है, कंज्यूमर प्रेफरेंस क्या है, वो 300 ग्राम लेगा कि 400 ग्राम लेगा, वो प्रेफरेंस आपको अंडरस्टैंड करनी है, कंज्यूमर किस वे में चाहता है। देखिए, जो मछली खाने वाला है वो डेफिनेटली दैट इज मिडिल क्लास एंड स्लाइटली अबव मिडिल क्लास, एक मिडिल क्लास का ग्रुप और मिडिल क्लास से थोड़ा ऊपर वाला ग्रुप ये मछली खाता है, क्योंकि 500 रुपए केजी है, लोगों के पास आजकल पैसा भी नहीं है बेचारे, मतलब ये ग्रुप मछली खाने वाला है। और वो क्या कहते हैं, हम मछली ऐसे घर नहीं ले जाएंगे, फिर महक आती है किचन में, फिर हाथ में महक आ जाती है मछली, बच्चे डरते हैं। तो वो जो कंज्यूमर प्रेफरेंस लेवल है कि कंज्यूमर को किस लेवल पे चाहिए, वो अंडरस्टैंड करना है। अच्छा, कितने लोग ऐसे होंगे मार्केट में जो मुझे इस तरह से मछली को प्रोसेस करके लेना पसंद करेंगे, जैसे मतलब वो प्रोसेस्ड हो, उसका जो गट है डिगटेड हो, अच्छी तरह से वॉश की हो मछली। तो जब आपको वो सारी चीजें जहन में आ जाएगी, जब आप इस सबको डिमार्केट करोगे, तब जाके जब आप मार्केट में आ जाओगे, तब आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन कहलाओगे। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब जिस कंपनी का मैं प्रोडक्शन हेड हूं, K2 एक्वाकल्चर, हम क्या आपको दे रहे हैं, मतलब इस कंपनी से आम जो एंटरप्रेन्योर है, न्यू बडिंग एंटरप्रेन्योर, उनको क्या मदद मिल रहा है। देखिए, हम जब बिजनेस मॉडल बनाएंगे, हमारे पास सपोज 20 लाख रुपया है जेब में, हम जा रहे हैं, इसी में जमीन भी खरीदनी है, माँ बाप ने दिए 10 लाख, बेटा पढ़ने के लिए भेजा था आपको, आप नौकरी तो आपको मिल नहीं रही है, अब तो तुम बेकार हो, यानी कि नौकरी नहीं मिली, ऑलरेडी आपका वैल्यू जो घर में है वो बिलो 50 होता है। ठीक, अब तक तो घर वाले आपको बोलते हैं यार हमारा बच्चा MFSC करता है, BFSC करता है, बहुत प्यारा बच्चा है, कितना खर्च चाहिए, अच्छा 100 रुपये लो, ये रहा 100 रुपये। फिर आज भी घर में ही हो, कहीं जाते नहीं हो, देखिए मार्केट जाओ, देखो कहीं काम कुछ करो, कमाओ। आपने कल ही जैकेट ली थी, अब नई जैकेट लानी है, कहाँ पैसे कमाते कुछ भी नहीं हो। ठीक है, अब उन्होंने मतलब पता है माँ बाप सब प्यार करते हैं, बच्चा खराब ना हो जाए, चलो 10-20 लाख रुपया कहीं जमीन बेच दी, कहीं लोन ले लिया, दे दिया इसको 10-20 लाख रुपया, जाओ कर लो बिजनेस।
अब आप मॉडल सारे तैयार नहीं कर सकते कि एक दिन आप दिल्ली में घूमोगे, हैदराबाद, चेन्नई, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में देखोगे कि मार्केट क्या है, लोकल मार्केट क्या है। ये तो आपका काम नहीं हो पाएगा। अब खैबर क्या कर रहा है? खैबर कह रहा है कि लोग आ जाए, न्यू वेंचर में आ जाए, हम इन सबको एक कॉमन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म दे देंगे। इनको खाली इन्वेस्ट करना है लैंड में, बाकी सब अगर बच्चे आ जाएंगे, लोग आ जाएंगे, फार्मर आ जाएंगे, किसी को इंटरेस्ट है, इसको खाली लैंड आइडेंटिफाई करके देनी है। कंस्ट्रक्शन डिजाइन हम करेंगे, उसको कंसल्टेंसी हम दे देंगे पूरी कि आपको रेसवे कैसे बनाने हैं, उसको सीड हम प्रोवाइड करेंगे, इंप्रूव्ड वैरायटी ट्रेन, उसको फीड हम दे देंगे, हार्वेस्ट तक उसको कोई खर्चा नहीं, फीड भी हम ही दे देंगे, सीड भी हम ही दे देंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हम ही उसमें कंसल्टेंसी दे देंगे, यानी कि अब आपको जो ऑपरेशनल खर्चा है वो पूरा निकल गया, क्योंकि फीड भी हम ही दे रहे हैं, सीड भी आपको हम ही दे रहे हैं। और सीड भी क्या, जो आप 3-3.5 महीने में आप 250 से 300 ग्राम वाली मछली तैयार करोगे अपने पॉन्ड पे, यानी कि जहां नॉर्मली आपका 1 साल या 1.5 साल आपका पॉन्ड यूटिलाइज रहेगा, वहां आपको खाली 1 साल में आप 3 क्रॉप्स निकाल सकते हैं। और मार्केटिंग क्या है कि खैबर आपका ही जो प्रोड्यूस होगा उसको परचेज कर लेगा, और परचेज भी किस रेट पर करेगा, जो मार्केट में प्रिवेलिंग रेट है। अगर आप कभी मार्केट में मार्केटिंग के लिए जाओगे, जो इंटीरियर फार्म्स हैं गांव के अंदर जिनको एक्सेसिबिलिटी नहीं है, आपको पता है वहां ट्राउट की रेट क्या है? नहीं, 350, 360 इज द रेट इंटीरियर। जिनके पास मार्केटिंग बेचारों के पास नहीं है, जो अब मछली लेके आए बाजार और वहां नुकसान हो गया, मर गई मछलियां, फिर वापस ले गए तालाब पे ही, आपको पता है होलसेल में कितने में उठाते हैं? 350, 350 उनको दे रहे हैं, कितना। और खैबर प्रिज्यूम कर रहा है हम आपको 500 रुपया बराबर दे देंगे, कितना? 500 रुपये, यानी कि हमारी जो ये खैबर ग्रुप ऑफ कंपनी केटो एक्वाकल्चर आपको सीड भी देगी, आपको फीड भी देगी, जो सीड देगी वो। और दूसरा, हमें आपने ये देखा होगा पैथोलॉजी में जितने बच्चे होंगे कि यहाँ फ्राई सिंड्रोम है ट्राउट में, ग्लोबली है फ्राई सिंड्रोम, दैट इज द ग्लोबल प्रॉब्लम इन द ट्राउट इंडस्ट्री, फ्राई सिंड्रोम, जो आपको लॉस हो रहे हैं ड्यू टू टेम्परेचर डिप की वजह से, वो मिनिमाइज हो जाए। तो आई होप कि आपको मैंने जो यहाँ पे डिलीवर किया आपको वो समझ आया होगा। और बाय द वे कभी आदमी इमोशनल हो जाता है, आई एम सॉरी फॉर दैट। मेरा ये कहने का मकसद था कि ब्लाइंडली आप किसी भी वेंचर में नहीं जाना, और जाओगे तो पूरा स्टडी करके जाओगे। जब जाओगे तो इंशाल्लाह डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मैंने जो आप देखा मैंने वो आपको डिलीवर किया। अगर मुझे 2-3 साल पहले ये विजन होता जो इन लोगों के पास होता है, जो रियली एक होता है गॉड गिफ्टेड बिजनेसमैन, दुनिया में दुनिया भर के लोग, एयरटेल कितने लोग रूट पे थी, हर किसी के पास एयरटेल की सिम थी, लेकिन जियो की बिजनेस स्ट्रैटेजी अलग थी। एयरटेल का टावर भी कहीं दिख नहीं रहा है, सिम तो दूर की बात है, खाली जियो है। यानी कि ये सारा जो बिजनेस होता है ना, उनको अल्लाह ने एक ऐसी ना वो ब्रेन की कैपेसिटी दी होती है कि वो भेजना जानते हैं। तो जिसके अंदर आप में से अल्लाह ताला ने वो सलाहियत रखी होगी, he definitely try to get into the aquaculture venture as a business entrepreneur, and definitely he will succeed in this venture. Thank you. Local market को farmers के लिए रखेंगे। Thank you, sir. Thanks a lot for sharing your knowledge, your experiences, and your hardships with all of us. It was indeed very inspiring. So thank you so much for being with us today. So here today's program came to an end. We'll meet tomorrow, inshallah.